कीजिए। Respected all teachers and my dear colleagues, first of all, good afternoon to all of you. A warm welcome in our wonderful in-house teacher training. First of all, I would like to introduce myself. I am Kumari Ranjita of Hindi teacher in our school, Permanent Public School. I am very thankful of our organization and CBSE for providing me with such an excellent opportunity to deliver such a wonderful topic, environmental education. And my pleasure to deliver this session as per guidelines of CBSE, and now I am going to start the session. First of all, what is environment? In the nature, we see around ourselves, we see that we are surrounded by so many things. That means the large varieties of plants, that's called flora, and the large varieties of animals including human beings, the fauna, various types of gases, the planet system, the sun, the moon, the stars, natural creation like the sea, the forest, the deserts, the mountains, the rocks, the hot, the cold. These all together constitute an environment. Our environment is made up of two types of components. Living components, it's called biotic, and non-living components abiotic. So, in simple word, the sum total of all biotic living things and abiotic non-living things factors that surrounded and potentially influence the survival and development on the one side, danger and damage on the other side is termed as environment. In other words, environment is a sum total of physical, chemical, biological and social components that causes direct or indirect effects on living beings including human. तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट, तो हिंदी भाषा में पर्यावरण शब्द दो शब्दों के मेल से, संयोजन से मिलकर बना है, परि जोड़ आवरण। इसमें परि शब्द का अर्थ है हमारे चारों ओर एवं आवरण शब्द का अर्थ है ढका हुआ, यानी कि परि यानी कि हमारे चारों तरफ, आवरण यानी कि ढका हुआ, यानी कि हमारे चारों तरफ, जिससे मतलब जिसने हमें ढक रखा हुआ है। तो ये दोनों शब्द मिलाकर अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि चारों ओर से घेरे हुए, ढके हुए, उसे पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंटल इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंस अस। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। पर्यावरण के घटक है दो, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में जैसे जीव जंतु, वनस्पति, इसमें जैसे पशु, पौधे, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, और अजैविक घटक में जैसे कि पहाड़, नदी, सागर, झील, पर्वत, तालाब, ये सब आ जाते हैं। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है, और अपघटक जैविक श्रेणी का तत्व है। अपघटक जो होता है जैविक श्रेणी का तत्व है, वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला अपघटक होता है। आगे हम जानेंगे, अभी तो हमने इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण। अब इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंट द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट surrounded and influence the survival and development of an organism. Education, system of imparting knowledge and information. What is environmental education? Environmental education is a process by
which people develop awareness, concerns and knowledge of the environment and learn to use this understanding to preserve, conserve and utilize the environment in a sustainable manner for the benefit of the present and future generation. It entails the will to take personal activities and social participation to achieve sustainability. तो ये हमने देखा कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की आवश्यकता, इसका महत्व। तो पर्यावरण का मानव के सभी पहलुओं पर प्रभाव होता है। ये जो पर्यावरण है इसका प्रभाव मानव के सभी पहलुओं पर होता है। जीवन के विभिन्न रूपों में इसका प्रभाव होता है एवं इसका महत्व होता है, जिससे मानव अपने जीवन के स्थापन को संतुलित रूप में रख सके। कि मनुष्य के जीवन को संतुलित रूप में रखने के लिए पर्यावरण बहुत ज़रूरी होता है और पर्यावरण का शिक्षा लेना भी हमारे लिए उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित तरीके से रख सके। पर्यावरण पर प्रभाव मानवीय जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। साथ ही यह मानव जीवन की प्रकृति, विकास, जीवों के व्यवहार एवं परिपक्वता आदि को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार से इस अध्ययन का महत्व और अधिक हो जाता है कि किस प्रकार से मानव पर्यावरणीय भी प्रभावित कर रहा है। मानव जो है पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। अब इसकी शिक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरणीय तत्वों का मानव द्वारा अत्यधिक अनियंत्रित दोहन ने अनेक पर्यावरणीय समस्याएं कर दी है। क्योंकि मनुष्यों ने ये जो पर्यावरण है इसका इतना अधिक दोहन किया है, इसको इतना अधिक इसका शोषण किया है अपने फायदे के लिए कि तरह तरह की समस्याएं जो है हमारे सामने आज आकर खड़ी हो गई हैं पर्यावरण संबंधी। इससे उसकी गुणवत्ता में कमी आती जा रही है और जिस कारण से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो रही है, उसकी गुणवत्ता कम हो रही है। अतः इससे पर्यावरण शिक्षण का महत्व अधिक हो गया है। तो इस कारण हमारे लिए पर्यावरण शिक्षा एकदम महत्वपूर्ण हो गया है। जानना जरूरी है कि हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, ऐसा हमें क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, या हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण का मनुष्यों से बेहद एकदम क्लोज नाता है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा तो हमारा भी विकास ठीक से नहीं रहेगा। तो इसलिए हम जो पर्यावरण का शोषण कर रहे हैं और इसमें जो गुणवत्ता की कमी होती जा रही है, तो इसके लिए पर्यावरण शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है कि किस प्रकार मानव जो है पर्यावरणीय प्रभावों से उत्पन्न भयंकर बीमारियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बच सके अथवा विभिन्न भयंकर बीमारियों तथा प्राकृतिक से बच सके अथवा उनका सामना कर सके। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के बल पर उनका सामना कर सके। तो पर्यावरण के गुणवत्ता में जो कमी आ गई है, जैसे कि पोल्यूशन चारों तरफ हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो यह इसका सीधा असर हम मनुष्यों पर पड़ रहा है। तरह तरह की बीमारियां जो है हमें घेरे हुए हैं। तो अगर हमें उन सबसे सामना करना है इन बीमारियों से, आने वाली समस्याओं से, तो हमारे लिए पर्यावरण शिक्षा एकदम बेहद ज़रूरी है। इसके बारे में हमें जानना, इसका शिक्षा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है ताकि हम इसका सामना कर सके। पर्यावरणीय अध्ययन मानव को पर्यावरण सूझ का विकास हो सके। साथ ही पेड़ पौधों, जंगलों, पर्वतों तथा पहाड़ियों की रक्षा एवं संरक्षण करने का पाठ पढ़ाता है। इनके द्वारा ही जीव जीवित रह सकता है। तो ये जो पर्यावरण शिक्षा है, इसमें जो तरह तरह के जो हमारे आसपास का वातावरण नेचर है, जिसमें नदी, पहाड़, पर्वत, झरने, पेड़ पौधे सभी आते हैं, तो हम इसकी रक्षा, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं या हमें कैसे करना है, इसकी शिक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा कि हम
मनुष्यों पर इसका क्या है, अच्छा असर पड़े। पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध रह सकेगा। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व वर्तमान में बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य अपनी सुख सुविधा की खोज में अपने प्राकृतिक वस्तुओं को विकृत करने में लग गया है। आज का जो युग है, हर मनुष्य अपनी सुख सुविधा के पीछे जो है भाग रहा है। हर कोई चाहता है सुख सुविधा भरा जीवन जीने के लिए, तो इसके लिए तरह तरह का पर्यावरण का शोषण हो रहा है, जैसे जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उद्योग धंधे बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए पेड़ पौधों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे हमारे वातावरण पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हम अपने सुख सुविधा के लिए पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं, एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए पर्यावरण शिक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख कार्य वातावरण से संबंधित समस्याओं को समझ सकने में व्यक्ति की सहायता करना। और ये जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इसका प्रमुख कार्य जो है कि वातावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण, इससे बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम समझ सके, इन समस्याओं के बारे में हम समझ सके, और यह हमारी इसमें सहायता करता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन हमें इस समझ को बढ़ाने में सहायता करता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उसमें व्याप्त प्रदूषण को दूर करने के लिए व्यक्ति में अभिवृत्ति का विकास करता है। तो पर्यावरण एजुकेशन से जब हम, चूँकि बच्चे विद्यालय में सीखने के लिए आते हैं, या बच्चे ही क्या, कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ है, तो हम भी कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ सीखते हैं। तो अगर हम कुछ बातें ऐसे सीख रहे हैं, अगर वो हमें अच्छी लग रही है कि नहीं हमें यही करना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि हम उसके प्रति सोचेंगे कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा है हमारे लाइफ में, सभी के लाइफ में, मनुष्यों के लाइफ में, और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो पर्यावरण शिक्षा है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है, हम सभी मनुष्यों के लिए है। इसमें सभी को जागरूकता होना पड़ेगा, सभी को जागरूक होना पड़ेगा। इससे संबंधित जानकारी सभी को रहनी चाहिए कि हम अपने वातावरण के साथ क्या कर रहे हैं, हम किस प्रकार इसे प्रताड़ित कर रहे हैं, कि जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है यह हमें इसमें काफ़ी मदद करता है। पर्यावरणीय अध्ययन मानव को पर्यावरण सूझ का विकास हो सके, साथ ही पेड़ पौधों, जंगलों, पर्वतों तथा पहाड़ियों की रक्षा एवं संरक्षण करने का पाठ पढ़ाता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण को संरक्षित करने, उसमें व्याप्त प्रदूषण को दूर करने के लिए व्यक्ति में अभिवृत्ति का विकास करता है। तो ये जो पर्यावरण अध्ययन है, यह क्या करता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने में, यानी कि हमें उसकी रक्षा करनी है, उसे बचाना है उसमें, और व्याप्त प्रदूषण, और ये जो इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में प्रदूषण भरा पड़ा हुआ है, व्याप्त है, उसको दूर करने में हमारी सहायता करता है, हमें ज्ञान देता है कि इन समस्याओं को, इन प्रदूषण को दूर करने के लिए हमारे अभिवृत्ति का, हमारे अंदर एक भावना का विकास करता है कि हमें इस प्रदूषण को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या उपाय करना चाहिए। पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरण समस्याओं समाधान हेतु व्यक्तियों में आवश्यक कौशल उत्पन्न करता है। तो पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए पर्यावरण अध्ययन जो है व्यक्तियों में एक कौशल का विकास करता है, अभिवृद्धि करता है। आगे हम देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा वस्तुतः विश्व समुदाय के पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिससे वे समस्याओं से अवगत होकर उनका हल खोज सके तथा साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं की रोकथाम कर सके। तो लास्ट में यहाँ पर्यावरण शिक्षा जो है यह विश्व समुदाय को, यानी कि पूरे विश्व के लिए, यहाँ किसी
कोई उम्र सीमा नहीं है, एज लिमिट नहीं है कि इसमें बच्चों को ही पढ़ाना है, शिक्षा देना है। सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण का रक्षण कैसे करना चाहिए या क्या हो रहा है इसमें, जो इसके जो दुष्परिणाम है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए तो ये जो शिक्षा है, इससे क्या होगा कि समस्याओं से हम अवगत हो जाएंगे कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं, पेड़ पौधों की कटाई हुआ या फिर प्रदूषित कर रहे हैं जल को, हवा को, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम इसके दुष्परिणाम जान जाएंगे कि इससे क्या होता है, इसकी हानि हमें पता लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इन समस्याओं से अवगत हो जाएंगे और इसका हल खोजेंगे, उपाय ढूंढेंगे कि हम क्या करें कि यह सुरक्षित रहे और यह समस्या जो है हमारे सामने न आए, तथा भविष्य में इससे संबंधित आने वाली जो भी समस्याएं हैं उसका भी रोकथाम हो सकता है। पर्यावरण शिक्षा दायित्वों को जानने एवं विचारों को स्पष्ट करने की वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश बीच स्वयं की संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल और अभिवृत्ति का विकास करे। तो ये जो शिक्षा है, तो ये शिक्षा हमें क्या देती है कि हम अपने दायित्वों को, मनुष्य दायित्व क्या होता है, हमारा जो फर्ज होता है, कर्तव्य, तो हर मनुष्य का अपना एक दायित्व होता है अपने परिवार के प्रति, सबके प्रति। अब घर में जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं, लेकिन ये पर्यावरण के प्रति भी, समाज के प्रति भी तो होता है, लेकिन ये पर्यावरण तो सबका है जिसमें हमें रहना है, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसके प्रति भी हमारा कुछ दायित्व है, हमारा कुछ फर्ज है जिसे हम ध्यान में रखेंगे और हम अपना संबंध पर्यावरण से स्थापित करेंगे कि पर्यावरण से मनुष्यों का संबंध एकदम गहरा है, आज से ही नहीं, शुरू से ही, और अभी ही नहीं, पहले भी गुरुकुल आश्रम में भी पहले भी पर्यावरण के प्रति उसका संरक्षण करने की, रक्षण करने की जो शिक्षा है शुरू से ही दी जाती है, आदिकाल से ही, कि हमें कैसे उनके साथ पेश आना है, प्रकृति के साथ, मतलब उसका हानि नहीं करना है, उसका शोषण नहीं करना है। आगे यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों हेतु व्यावहारिक संहिता निर्माण करने एवं निर्णय लेने की आदत को भी व्यवस्थित करती है। तो ये जो शिक्षा है, तो ये क्या करती है, व्यवहारिक संहिता निर्माण करने एवं निर्णय लेने की भी व्यवस्था करती है। पर्यावरण शिक्षा अर्थात अधिगम की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से जुड़ी जानकारी एवं जागरूकता को बढ़ावा दे सके और साथ ही उसका सामना करने के लिए आवश्यक कुशलताओं को विकसित करने में सहायक हो। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्यों प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा किसी विज्ञान या विषय के अध्ययन की अलग शाखा नहीं है, इसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। तो ये जो शिक्षा है पर्यावरण शिक्षा, यह किसी विषय के अंतर्गत आने वाली शिक्षा ही नहीं है, बल्कि इसे जीवन पर्यंत चलने वाला शिक्षा के रूप में इसको चलाया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख प्रयोजन नागरिकों के अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबंध के बारे में जागृति पैदा करना और उसे बढ़ावा देना। और इसका मुख्य उद्देश्य भी है इस शिक्षा का कि नागरिकों को अपने उत्तरदायित्वों यानी कि उन्हें अपना कर्तव्य फर्ज इस पर्यावरण के प्रति सुरक्षा प्रबंध इसके बारे में उनके अंदर जागृति पैदा करना, चेतना पैदा करना, यानी कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। क्योंकि आज के समय में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर चहुओर जागरूकता होना अति आवश्यक है। इसे प्रत्येक नागरिक एक महत्वपूर्ण दायित्व, जिम्मेदारी, कर्तव्य जो भी कह लें, अपना जिम्मेदारी कहें, अपना कर्तव्य कहें, फर्ज कहें, दायित्व कहें, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हो जाता, तब तक हमारे सामने पर्यावरण सुरक्षा एक सवाल बनकर ही रहेगा। जब तक देश का हर नागरिक अपने इस दायित्व के प्रति, इस पर्यावरण सुरक्षा के दायित्व के प्रति, फर्ज के प्रति, जिम्मेदारी के प्रति
जागरूक नहीं होगा तब तक यह समस्या हमारे सामने एक सवाल के रूप में ही बना रहेगा। यदि हम पर्यावरण पर अत्याचार करते हैं तो इसकी सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व भी हमारा ही है, क्योंकि हम ही ने अत्याचार करके जब उसको बिगाड़ा है, उसे हम ही हर्ट कर रहे हैं, हम ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसको सुधारना, उसकी रक्षा करना भी हमारा ही फर्ज है। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। तो अगर हमने गलती की है, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं तरह तरह बीमारियों के रूप में, तरह तरह से, तो फिर हम ही को उसका रास्ता ढूंढना है कि हम कैसे उसका बचाव करें और इन सब चीज़ों से हम बचे रहें। पर्यावरण के बारे में जानकारी कर, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के बारे में जानकारी कर अपने कौशल से उसकी समस्याओं को समझने, हल निकालने, मिटाने या दूर करने की शिक्षा है। तो पर्यावरण शिक्षा जो है क्या है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने कौशल से, कौशल क्या होता है, एक व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है हर चीज़ को समझने की, अच्छा बुरा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। तो ये हमारे हर व्यक्ति मनुष्य के अंदर की एक गुण होता है। तो अपने कौशल से क्या है कि हम इसकी समझ, हमारे मन में इसकी उपज हो कि हमें क्या करना है पर्यावरण के साथ, और इस उपज जब हमारे अंदर आ जाएगी तो हम समस्याओं को समझने और हल निकालने और इसको मिटाने के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। तो पर्यावरण शिक्षा यही है कि ये जो समस्याएं हैं हम इसका हल निकालें, इसको मिटाने, इसको दूर करने का जो कौशल है हमारे अंदर प्राप्त हो जाए। पर्यावरण शिक्षा का कार्य इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी जगत को उस पर आने वाली विपदाओं से बचाव करने तथा उन्हें सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करना है। साथ ही उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे भविष्य में हो सकने वाली समस्याओं को पूर्व में ही जान सके तथा उनका इस तरह हल खोजे कि समस्या दूर भी हो जाए और नियमित जीवन प्रक्रिया में बाधा भी उत्पन्न न हो। तो ये जो शिक्षा है, तो इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी जगत को उस पर आने वाली विपदा जिसको कि हम लोग विपत्ति बोलते हैं, आपदा बोलते हैं, संकट बोलते हैं, तो उस पर जो संकट आने वाला है, विपदा आने वाला है, उसके बारे में अवगत कराना कि इसका क्या नतीजा होने वाला है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसके बारे में अवगत कराना। साथ ही उन्हें सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करना, क्योंकि इन आपदाओं को जब वे समझ लेंगे, संकटों को, और उसके बचाव का उपाय जब ढूंढ निकालेंगे, तभी तो जीवन जो है सुखमय होगा। और इन्हें इस योग्य भी बनाना है कि वे भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहले ही जान लें, पूर्व में ही उसका ज्ञान उन्हें हो जाए कि भविष्य में ये समस्या आने वाली है, ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, तो इसका उन्हें पूर्व में ही वे जान सके तथा उनका इस तरह हल खोजे, उन समस्याओं का हल इस तरह से खोजे कि समस्या भी दूर हो जाए और इसका जो है नियमित जीवन की जो क्रियाएं हैं उसमें कोई बाधा भी उत्पन्न न हो। मनुष्य एवं अन्य जीव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन आदि के लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह इन सभी बातों के महत्व को समझने और संरक्षण की सोच विकसित करने हेतु पर्यावरण शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो भी जीव है, इसमें जीव में हम भी आ जाते हैं, मनुष्य भी एक जीव ही है, तो यह इसकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरत है, जैसे कि हवा, पानी, खाना, ये तो बाकी ज़रूरतें बाद में है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत जो उसकी होती है उसको जीने के लिए हवा, पानी, तो शुद्ध वायु, शुद्ध पानी या फिर शुद्ध भोजन हमें इसी से प्राप्त होने वाला है, पर्यावरण से ही। तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और इन सभी बातों का महत्व समझाने के लिए और संरक्षण की सोच विकसित करने के लिए इस शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। आगे कुछ और हम इसके महत्व समझते हैं। सौरमंडल में मात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, अतः इसे नष्ट होने से सदैव ही बचाना है ताकि इस पर बसने वाला जीव जंतुओं को सुरक्षित एवं सुखप्रद जीवन प्रदान किया जा सके। तो हमारा ये जो सौरमंडल है,
इसमें पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव है, जिस पर जीवन संभव है। तो अतः इस पर जो भी जीवन है उस जीवन को बचाना, इसे नष्ट होने से बचाना, यही क्या है, हमारा फर्ज है। सदैव ही इसे हमें बचाना है कि यह जीवन जो है नष्ट न हो, ताकि इस पे बसने वाले जो भी जीव जंतु है इनका जीवन सुरक्षित रहे एवं सुखमय रहे। जनसंख्या वृद्धि आज संपूर्ण विश्व की समस्या है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हो गया है। अतः इसे संतुलित करने के लिए पर्याप्त प्रयास करना। तो जनसंख्या वृद्धि जो आज हमारे सामने एक समस्या बन के खड़ा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से ही जो है तरह तरह के नुकसान इस पर्यावरण पर हो रहे हैं। तो इस संपूर्ण विश्व में यह एक समस्या है और इसके कारण प्रकृति का संतुलन भी गड़बड़ हो गया है। अतः इस संतुलन को संतुलित रखने का हमें प्रयास करना है। प्रकृति में संसाधनों के विशाल भंडार सीमित होते हैं, जिनका उचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग हो। इस बात की जागरूकता तभी आ सकती है जब संबंधित शिक्षा का विस्तार हो। तो ये जो प्रकृति है इसमें जो भी संसाधन है, तो इसका जो भंडार है, भंडार मतलब जहाँ पे सब कुछ संचित करके रखा हुआ होता है, तो प्रकृति में ने जो भी भंडार संचित करके रखा है वह एक सीमित है। तो इसका उपयोग हम आवश्यकता से अधिक न करें, तो अपने बुद्धिमत्तापूर्ण, यानी कि इसका उचित उपयोग जो है बुद्धिमत्ता से हम करें कि हम ज़्यादा इसको वेस्ट नष्ट जो है न करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। और इस बात की जागरूकता तभी आ सकती है जब इससे संबंधित शिक्षा का विस्तार होगा। इससे संबंधित शिक्षा का विस्तार होगा तभी इस बात के संबंधित जो है जागरूकता मनुष्यों में आ सकती है कि प्रकृति में जो भी भंडार, विशाल भंडार है वो एक सीमित है, तो उसका हम बुद्धिपूर्ण से, यानी कि थोड़ा बुद्धि से समझ रख के, सोच समझ के उसका हम उपयोग करें। चूँकि वनों की भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से होने वाली पर्यावरणीय विकृतियों से अवगत कराना। तो हम जानते हैं कि ये जो वन है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इनका काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना, जो ऑक्सीजन हमारे जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो अगर पेड़ पौधे ही कम हो जाएं तो यह समस्या सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा है उसको बनाए रखने के लिए तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जो वृद्धि हो रही है, तो इससे होने वाली पर्यावरणीय विकृतियों से अवगत कराने के लिए पर्यावरण शिक्षा भी जरूरी है। आगे, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण। औद्योगिक क्रांति यानी कि जैसे कि मनुष्य की जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो लोग अपने रहने के लिए, घर बनाने के लिए या फिर अपना जीवन जीने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए तरह तरह के औद्योगिक का निर्माण कर रहा है। तरह तरह के मिल, कल कारखाने जो हैं, तो इसके लिए उसे जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो जगह की ज़रूरत के लिए वो वनों की कटाई जो है, पेड़ों की कटाई करता है। या फिर ये जो औद्योगिकरण है, इससे जो भी वेस्ट चीज़ें निकलती है बहुत सारा, जो कि हमारे एयर को, हवा को जो है पोल्यूशन करती है, पानी को प्रदूषित करती है। तो ये जो औद्योगिक क्रांति है, क्रांति यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले के लोग जो थे सीमित उनकी आवश्यकता होती थी। जैसे कि हमारे घर अगर ये वस्तु है तो आपको उस वस्तु के बदले आपको दे करके हमने आपसे दूसरी वस्तु ले ली, उसको वस्तु विनिमय की पद्धति कहा जाता था कि वस्तु के बदले में वस्तु लेकर के अपना काम चला लेना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंसान जो है प्रगति के पथ पर जो आगे बढ़ रहा है और अपनी प्रगति करने के लिए उद्योगों का जो है निर्माण, तरह तरह के प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं, नए नए उसका विस्तार हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि यह इसका भी एक कारण है, प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण एक ये भी है औद्योगिक क्रांति।
तो उसके कारण एवं प्रभावों का ज्ञान तभी हो सकता है जब पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। तो इससे उत्पन्न जो प्रदूषण हो रहे हैं औद्योगिक क्रांति से, तो उसका भी ज्ञान मनुष्यों को तभी हो सकता है कि जब उसे पर्याप्त शिक्षा प्राप्त हो। पर्यावरण के विभिन्न घटक किस प्रकार एक दूसरे के क्रियात्मक संबंध रखते हैं, इसकी समुचित जानकारी प्रदान करना। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का कार्य एक यह भी है कि इसके जो विभिन्न घटक है, यह किस प्रकार एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रहते हैं। पर्यावरण में जितने भी घटक है सब एक दूसरे से उनका संबंध है। तो इसके बारे में भी इसकी समुचित जानकारी भी देना है, करना है। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों की विवेचना तथा पर्यावरण के प्रति चेतना जगाना। तो पर्यावरण क्या है कि पर्यावरण पर और स्वास्थ्य पर, यानी कि इस शिक्षा में यह भी इसकी भी शिक्षा जरूरी है कि ये जो पर्यावरण है और हमारा स्वास्थ्य है, तो इस पे होने वाले प्रभावों की विवेचना तथा पर्यावरण के प्रति चेतना, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करना भी इस शिक्षा का एक तरह से उद्देश्य है। क्षेत्रीय पर्यावरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन तथा उनके निराकरण के उपाय प्रस्तुत करना। तो क्षेत्रीय पर्यावरण यानी कि अलग अलग क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ क्षेत्र में कुछ समस्याएं कुछ ज़्यादा ही विकसित होती हैं। तो ये जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं उसका अध्ययन करना तथा उसके निराकरण यानी कि उसको दूर करने का उपाय, ये भी प्रस्तुत करना इस शिक्षा का उद्देश्य है। अर्थात मानव कल्याण एवं संपूर्ण वातावरण की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले सार्थक एवं दिशात्मक प्रयास पर्यावरण शिक्षा के बिना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर अंत में यहाँ पर कि जो मानव कल्याण, मनुष्यों के कल्याण के लिए जो एवं इस संपूर्ण वातावरण की सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास करने हैं, जो भी सार्थक प्रयास या दिशात्मक प्रयास मतलब उनके सुरक्षा के लिए जो प्रयास करने हैं, तो पर्यावरण शिक्षा के बिना ये सब संभव है ही नहीं। जब व्यक्ति को उस बात का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वह करेगा कैसे। तो इसलिए यह पर्यावरण शिक्षा बेहद ज़रूरी है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण शिक्षा आज के समय के लिए निश्चित ही एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पर्यावरण के विषय में विस्तृत सोच के आधार पर पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार की बात जब कुछ बुद्धिजीवियों ने रखी, बुद्धिजीवी यानी कि कुछ हमारे कुछ विशेषज्ञ होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने रखी, तभी से इसके लिए कोई नैदानिक एवं उपचारात्मक तरीके अपनाने पर बल दिया गया। यानी कि जब यह समस्या गंभीर रूप धारण करने लगी और हमारे यहाँ पे बुद्धिजीवी इस्तेमाल किया गया, हमारे कुछ विशेषज्ञ होते हैं, कुछ वैज्ञानिक, उन्हें लगा कि इस विषय पे सोचना जरूरी है क्योंकि यह विषय काफ़ी गंभीर है, ये एक समस्या के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। तब उन्होंने इस पर बल दिया। यह बात मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम 1972 में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रखी गई तथा वहीं इस बात का प्रस्ताव भी पारित किया गया कि पर्यावरण समस्या को सुलझाने एवं उन्हें दूर करने हेतु पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की संभावना को मूर्त रूप दिया जाए। 1972 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इस बात को रखा गया कि ये जो पर्यावरण के संबंधित समस्याएं हैं, इन्हें सुलझाने व इन्हें दूर करने के लिए पर्यावरण शिक्षा को देना एकदम जरूरी है। इन्हें मूर्त रूप दिया गया, यानी कि इस शिक्षा को एकदम जरूरी कर दिया गया। 1975 तिबिलिसी अंतर्देशीय सम्मेलन 1977 ने पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम को मंजूरी दी तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रम की उपादेयता स्पष्ट की। वे सभी पर्यावरण शिक्षा के महत्व के अंतर्गत आते हैं और ये सभी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, ये सभी अपने आसपास जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है,
इसकी जो गंभीर समस्याओं का निदान है, इसको देखते हुए पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत ही ये सभी कार्यक्रम आते हैं। इन सभी सम्मेलनों में पारित किए गए विभिन्न प्रस्तावों के फलस्वरूप पर्यावरण शिक्षा के जो महत्व प्रदर्शित हुए, हम यहाँ कुछ थोड़े से बता रहे हैं उसको। सबसे पहले समस्त आम जन को पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना। इन सम्मेलनों में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इसमें सबसे पहले था कि समस्त आम जनता यानी कि सभी नागरिकों को पर्यावरण की सत्य तथा तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराना, यानी कि पर्यावरण है क्या, यह हमारे लिए कितना जरूरी है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। आगे किसी भी समस्या का उसकी जानकारी के आधार पर संभावित कारणों का पता लगाना। अगर कोई समस्या है तो उस समस्या की उसकी जानकारी के आधार पर उसको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि यह समस्या का आखिर वास्तविक कारण है क्या, इसका पता लगाना। ऐसी अनचाही घटनाएं जो निकट भविष्य में जनजीवन को पूरी तरह असंतुलित कर सकती हो, इन घटनाओं की पूर्व से ही जानकारी एकत्र करते हुए सतर्क रहना। तो कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं होती हैं कि जो आने वाले भविष्य का जो हमारा जीवन है, इसमें यह जीवन को पूरी तरह से असंतुलित कर सकती है। तो इन घटनाओं को पूर्व से ही जानकारी एकत्रित करते हुए सतर्क रहना, अलर्ट रहना कि आने वाले समय में यह सब समस्याएं हमारे सामने आ सकती है। तो इसकी हम जानकारी प्राप्त करके और उसके प्रति हम उससे जूझने के लिए या फिर उसका सामना करने के लिए हमें सतर्क करना। भिन्न भिन्न समस्याओं का हल खोजकर बताना एवं सरलतम रूप में जानने का प्रयास करना। तो इस शिक्षा में जो चर्चा हुआ था, एक और भी हुआ था कि तरह तरह की जो समस्याएं हैं, उसका कोई भी समस्या है तो उसका हल ढूंढना तो ज़रूरी है। तो तरह तरह की समस्याओं का हल ढूंढ करके उसके बारे में जानने का प्रयास करना, फिर उसको आसानी से उसका हल उससे दूर करने का प्रयास करना। जनमानस को इस तरह तैयार करना कि वह किसी भी तरह की समस्या को समझने तथा उससे निपटने या हल खोजने को तत्पर रहे। जनमानस यानी कि मनुष्यों को, जनता को ऐसे तैयार करना, इस प्रकार तैयार करना कि वह किसी भी प्रकार की समस्या को समझने तथा उससे निपटने के लिए और उसका हल खोजने के लिए एकदम तत्पर रहे। तत्पर यानी कि एकदम तैयार रहे। ठीक है। जनता को पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा एवं सुधार के कार्यों के लिए सदैव प्रेरित करना। आम जनता, जो आम नागरिक होती हैं, सभी नागरिकों को पर्यावरण की संरक्षण, सुरक्षा और इसके सुधार के कार्यों के लिए हमेशा प्रेरित करना। ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना जिसमें भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित एवं सुखी हो, और लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना कि जिसमें भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारा अगला जनरेशन है, उसके लिए क्या हो जाए कि उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए और सुखी हो सके। जियो और जीने दो वाली भावना को आत्मसात करने की शिक्षा देना। इसके लिए हमारा जो भी चीज़ें हमें नुकसान पहुंचाती है तो उन्हें हमें उसके प्रति हमें अलर्ट रहना होगा। इन सभी बातों को समाहित उस जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इन सभी बातों को समाहित किया गया था, जिन्हें हम पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य भी कह सकते हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का उचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा की बचत, वनों की सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, स्वच्छ पानी, शुद्ध भोजन, हवादार आवास तथा स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का सदैव ही प्रयास करना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा की सफलता में ही सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन का परिणाम छिपा है। आगे हम ये जो पर्यावरण है, तो हम मनुष्य इसका कैसे दोहन करते हैं, जिसको क्षरण भी कहते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन। पर्यावरण का मनुष्य जो है कैसे दुरुपयोग कर रहा है, तो इसका तात्पर्य अर्थ ये है कि पर्यावरण की उस अवस्था से है जब इसे भौतिक घटकों में निरंतर क्षय होने लगता है, यानी कि इसकी जो क्षमता है, गुणवत्ता है,
इसमें कमी आने लगती है। इसी को पर्यावरण क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन कहते हैं। क्षरण की इस प्रक्रिया में जैविक प्रक्रियाओं खासकर मानवीय गतिविधियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यही नहीं, पर्यावरण क्षरण इस हद तक हो जाता है कि स्वनियंत्रण कार्यविधि के या आंतरिक प्रक्रिया भी इस पर रोक नहीं लगा पाती है। दरअसल मानवीय क्रियाओं व गतिविधियों के कारण पर्यावरण के तत्वों व घटकों में व्यापक रूप से फेरबदल हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। पर्यावरण की संरचना में आया यह नकारात्मक परिवर्तन पृथ्वी पर मौजूद हर जैविक समुदाय, खासकर मानव समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे कि ये जो इन्वायरमेंट है, हम कैसे इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिटेरियोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू डिप्लेशन ऑफ resources such as air, water and soil, the destruction of ecosystem habitat, destruction, the extensions of wildlife and pollution। यानी कि हम जो है मनुष्य तरह तरह से इस प्रकृति का जो है शोषण कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ही कारण नदियाँ यानी कि जल प्रदूषण, जो औद्योगिक क्रांति की बात अभी पीछे हमने कही, इसके कारण क्या होता है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट आज खड़े हैं, मिल, कारखाने, उसमें से जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, उसका जो वेस्ट तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, तो उसे वो क्या करते हैं कि नदियों में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। या फिर उनसे जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाता है तो एयर को प्रदूषित करता है, हवा को प्रदूषित करता है। तो इस कारण या नहीं तो फिर जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं उसको ले जा कर के कहीं दूर फेंक दिया जाता है, तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी प्रदूषित होती है। या फिर उन कचड़े को जला दिया जाता है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको जला दिया जाता है, तो उससे भी जो धुआं ऊपर जाता है इस हमारे वातावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, हवा को प्रदूषित करता है। तो इस तरह से मनुष्य जो है, आगे देखिए हम मनुष्य किस तरह से इसको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले वनों का ह्रास और पर्यावरण क्षरण, यानी कि जंगल। वन जो होते हैं राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति कहते हैं, वनों को राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति कहते हैं। वनों से ही काष्ठ उद्योग व अन्य कई उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, साथ ही आवास, अच्छी मिट्टी, जलावन के लिए लकड़ी आदि भी वनों के कारण ही उपलब्ध हो पाता है। मिट्टी संरक्षण में, वर्षण में भी वन उपयोगी है। आज का मानव अपने अपने विकास के लिए वनों के पर्यावरणीय व जैविक महत्व को अनदेखा कर रहा है। यानी कि ये जो वन है इसके कई तरह से फायदे हमारे लिए हैं, जैसे घरों के लिए लकड़ी, जलावन के लिए लकड़ी, तरह तरह के, लेकिन हम इसी वन को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अपने सुख के लिए ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत एक की है अगर थोड़ी की है तो ज़रूरत से ज़्यादा हम उसको नुकसान यानी कि उसकी कटाई कर रहे हैं। और इस तरह से क्या हो रहा है कि निरंतर जो है वन क्षेत्र घटता जा रहा है, इस पृथ्वी पर से निरंतर वन क्षेत्र घटता जा रहा है। आगे कृषि विकास और पर्यावरण, तो कृषि विकास में आए तकनीकी विकास तथा कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी के कारण आजकल हम देख रहे हैं कि कृषि जो खेती जो हो रहा है, पहले के किसान खेती करते थे तो वो सब घर का खाद यूज करते थे, जैसे गोबर या जो कचड़े वाला चीज़ है उसको सड़ा करके। लेकिन आजकल कृषि तकनीक में जो विकास हुआ है तो इससे क्या है, खाद्यान्न समस्या उतनी गंभीर नहीं है। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग अधिक उत्पादन द्वारा पूरी कर दी गई है। यह सब पर्यावरण की बलि देने के लिए संभव है। यानी कि अधिक उपज के लिए, फसलों की अधिक उपज के लिए तरह तरह के जो हैं खाद
वो एक केमिकल्स ही है, उसे ज़मीन में डाला जा रहा है ताकि कृषि मतलब अच्छा अनाज पैदा हो उसके लिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो जो मिट्टी है वह प्रदूषित हो रही है, उसमें तरह तरह के केमिकल खाद के रूप में जो कई सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है। आगे जनसंख्या वृद्धि, इसके बारे में हमने चर्चा की कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है जिसके कारण पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, शहरीकरण हो रहा है, नगरों में वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो नगरों में भी वृद्धि होगी, लोगों को रहने के लिए स्थान घर चाहिए, तो इसके लिए नगरों में भी वृद्धि हो रही है, शहरीकरण हो रहा है, फैलते जा रहे हैं। आज कोई भी नगर हम अपने आसपास ही एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था आज फैलकर बहुत दूर तक चला गया है। तो यह क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो मनुष्य जनसंख्या बढ़ने का ही कारण है। तो इससे भी पर्यावरण का संतुलन जो है प्रभावित हो रहा है। औद्योगिक विकास, जैसे कि अभी हमने बात की कि मानव अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए तरह तरह के औद्योगिक को बढ़ावा दे रहा है, और इससे जो निकलने वाले इस औद्योगिक विकास से निकलने वाले कचरे, प्रदूषित पानी, जहरीली गैस, धुआं, राख, ये सभी क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधुनिक उत्पादन एवं तकनीक, वर्तमान पर्यावरण संकट को आधुनिक उत्पादन तकनीक का ही परिणाम कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, जैसे कि अभी हमने फसलों की बात की, फसलों पर जो कीड़े बैठते हैं उसके लिए कुछ रासायनिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ज़मीन में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इससे भी मिट्टी प्रदूषित हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम पर्यावरण का क्या कर रहे हैं, इस तरह से इसका क्षरण यानी कि इसका शोषण कर रहे हैं। आगे ये तो हमने इसका शोषण कर लिया, लेकिन अब हमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन के साथ मिलकर या फिर उसके चलते इसको कैसे बचाना है, तो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता लानी है लोगों में कि हम ये जो कर रहे हैं, पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, इसका जो क्षरण कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जागरूकता लानी है। तो अब जागरूकता लाने के लिए लोगों को अब इसमें जैसे कि पहले भी हमने कहा कि छोटे बच्चे ही नहीं बल्कि इसमें हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को जागरूक करना है, इसकी विशेषता, इसका महत्व बताना है। तो इसमें हम जैसे देखेंगे कि जैसे वायु, जल, अब इसमें शिक्षक की भी भूमिका है, पर्यावरण जागरूकता में, अवेयरनेस में शिक्षक की भी विशेष भूमिका है कि वायु, जल, भूमि, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु, मानव, ये सब मिलाकर ही पर्यावरण बनते हैं, और प्रकृति में इन सब की मात्रा और इनकी रचना इस प्रकार से व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर एक संतुलन में जीवन चलता रहे। लेकिन हमारे नासमझी के कारण या फिर अपने स्वार्थ के कारण हमने जो इसको बिगाड़ा है, इस पर्यावरण को, तो इसके लिए कुछ प्रबंध भी करना है। तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंध का कार्य चाहे कितना भी छोटा हो एवं सतही रूप में क्यों न हो, संचालित अवश्य किया जाए, क्योंकि उपाय ही भविष्य में जन समूह के द्वारा बृहद रूप धारण कर सकते हैं। यानी कि एक छोटा सा ही उपाय जब तक इसकी शुरुआत नहीं होगी तब तक वह एक बड़ा रूप धारण नहीं करेगा। अगर एक छोटी सी शुरुआत आज होगी तो आगे चल के वह बड़ा रूप धारण कर सकता है। कोई भी योजना पेड़ पकड़कर जैसे फोटो खिंचवाने से ही या फिर कागजों तक ही सीमित रहना योजना नहीं कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से तरह तरह की योजनाएं जो है चलते हैं, जैसे रोडों के किनारे पेड़ लगाना, लेकिन क्या उसकी रक्षा हो पाती है? उसको भी बिगाड़ते हम ही लोग हैं। लोग उसको तोड़ देते हैं या फिर जानवरों से उसको खिला पिला देते हैं। चूँकि हम भी इस देश के नागरिक है तो सबका फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों की रक्षा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनुष्य ही अपने जो भविष्य उसका अंधकार में आ रहा है, फिर अपने या फिर पर्यावरण के प्रति जो समस्या वो अपने ही हाथों से बनाता जा रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि यही हाल रहा तो आने वाला जीवन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थितियों को विभिन्न प्रश्न उठते हैं कि समाज
व विश्व पर प्रदूषण का क्या प्रभाव होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए एवं जनमानस तैयार करने का कार्य किसको सौंपा जाए। तो इसमें एक सवाल है कि ये जो समस्या प्रदूषण का बढ़ रहा है, तो इसके लिए जनमानस तैयार करना, यानी कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, लोगों को अच्छे सोच वाला बनाना, तो इसका किसको दायित्व सौंपा जाए। तो हमारे किन किन कार्यों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है की जानकारी किसके द्वारा, किन की सहायता से दी जा सकती है। जैसे लोगों को इस बात की जानकारी देना है कि किस कारण से इस पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ये जानकारी कौन देगा, लोगों को कौन देगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रबंध क्यों जरूरी है, कैसे, तो ये किसके द्वारा दिया जाए, यह किसका उत्तरदायित्व है, इसे कौन अच्छे तरीके से अच्छे रूप से निभा सकता है, जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण की ये जो जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले एक ही नाम आता है कि हमारे समाज के संचारक, यानी कि मैसेंजर एवं चाबी, मैसेंजर कहिए और वे है शिक्षकगण, क्योंकि शिक्षक ही समाज का भविष्य निर्माता तथा सूचना का वाहक होता है। शिक्षक का कार्य मात्र सूचनाएं देना ही नहीं बल्कि क्रियाओं को करके दिखाना भी है। कहा गया है कि टीचर इज नॉट ओनली सोर्स बट ऑल्सो ही रिसोर्स, कि टीचर एक सिर्फ स्रोत ही नहीं है बल्कि साधन भी है, यानी कि वह एक माध्यम ही नहीं है, वह एक खुद साधन है। वर्तमान में इस बात की महती आवश्यकता है कि शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति समाज में चेतना उत्पन्न की जाए। तो फिलहाल जो वर्तमान युग है, अब इसमें यह बहुत जरूरी हो गया है कि शिक्षकों व छात्रों के द्वारा पर्यावरण रक्षण एवं प्रबंधन के प्रति इस समाज में जागरूकता पैदा करना है, अवेयरनेस। यद्यपि इस बारे में सरकार द्वारा समय समय पर तरह तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में हमारा भी क्या प्रयास हो सकता है, यह हमें सोचना है और शीघ्र ही कार्य को प्रारंभ करना है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन में शिक्षक उत्तरदायित्व इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि रोल मॉडल, जैसे कि राष्ट्रपति, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था कि सर्वप्रथम शिक्षक को प्रत्येक क्षेत्र में रोल मॉडल बनना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण प्रबंधन के प्रति शिक्षक को स्वयं भी जागरूक हो तथा स्वयं वृक्ष लगाना, साफ सफाई, नैतिक, चारित्रिक एवं सामाजिक गुणों को अपने जीवन में अंगीकृत करना हो, तभी छात्र एवं समाज के लोग इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि मतलब जो भी चीज़ हम पहले दूसरों को सिखाते हैं तो पहले हमें वो खुद करने चाहिए। अगर हम बच्चों को कोई शिक्षा दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, तंबाकू मत खाओ, और खुद ही अगर टीचर तंबाकू खाए, या फिर कोई भी ऐसा कार्य, मान लीजिए हमारा स्कूल का जो कैंपस है और बच्चे से हम क्या बोलते हैं कि पेड़ों के ये जो पौधे हैं उसके पत्ते न मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, और कल अगर हम खुद वहाँ से एक फूल तोड़ते हैं और वो बच्चा देखता है तो क्या कहेगा कि मैम है या सर है हमें कहते हैं कि फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, और खुद ही वो तोड़ रहे हैं। तो ये तो गलत बात होगी ना। हम शिक्षा बच्चों को देंगे कि मतलब बिना वजह इसको मत तोड़ो, और वही हम काम करेंगे। तो इसीलिए रोल मॉडल, यानी कि सबसे पहले वह चीज़ हमें खुद करनी चाहिए। हम बच्चों को बोलेंगे कि पेड़ लगाओ, अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाओ या फिर पेड़ों की रक्षा करो, और हम खुद ही न लगाएं, खुद न करें। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि उस चीज़ को खुद हम अपने ऊपर भी लागू करें, ताकि देखकर बच्चे हैं या दूसरे भी कोई है ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें कुछ छोटे बच्चों की, तो देख कर वे बहुत कुछ सीखते हैं। आगे बड़े जैसा करते हैं, अगर आप कहें कि आप तुम ऐसा क्यों करे, तो वो तुरंत जो है रिप्लाई देते हैं कि वो तो ऐसा कर रहे थे, पापा तो ऐसे कर रहे थे, चाचा तो ऐसे कर रहे थे। तो इसलिए बच्चों के सामने अगर हम कोई अच्छी शिक्षा देते हैं तो हमें पहले अच्छा बनना होगा, तभी हम जो है उन्हें कह सकते हैं
कि आप जो है इस तरह का कार्य कीजिए। आगे है शिक्षक प्रभाव। तो शिक्षक जैसे कि शिक्षक का प्रभाव विद्यार्थियों पर काफ़ी होता है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन 5-6 घंटे जो है उनके साथ रहता है। और जैसा कि हम कहते हैं कि एक शिक्षक ही भावी पीढ़ी का निर्माण करता है, तो बच्चे भी जानते हैं कि हमारे टीचर ने जो भी कह दिया वो सही कह रहे हैं। तो शिक्षक का प्रभाव बच्चों पर काफ़ी रहता है। इसलिए हम कक्षा में बच्चों को पर्यावरण के प्रति, इसके जो नुकसान हो रहे हैं या फिर इसके रक्षण के प्रति बच्चों को ऐसी शिक्षा दे ताकि बच्चा उसके प्रति समझ सके और वह उस चीज़ को फॉलो करे, समझ सके और फॉलो करे। अब इसमें जैसे तरह तरह के चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कुछ शैक्षिक भ्रमण होते हैं, बच्चों को हम पेड़ पौधे डायरेक्टली ले जाकर दिखा भी सकते हैं कि देखो कितने प्यारे फूल है, इन्हें नहीं तोड़ना, पत्ते हैं नहीं तोड़ना। आगे जैसे कि शैक्षिक भ्रमण होता है, इसमें भी बच्चों को ले जा कर के दिखाया जा सकता है। फिर आगे तरह तरह के कुछ और भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि बच्चों को हम बोलते हैं जैसे प्रोजेक्ट कार्य देना, उसके प्रति पर्यावरण शिक्षा के प्रति, जैसे सेफ ट्री या फिर सेव वाटर, इसके बारे में प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, बच्चे करेंगे। पहले हम उनकी जानकारी, उसके बारे में जानकारी देंगे, उसकी आवश्यकता बताएंगे, उसका महत्व बताएंगे, फिर बच्चों को करने के लिए कहेंगे। और यही नहीं, वो बच्चा यहाँ अगर सीखेगा, हमने उसको बोलते हैं कि पेड़ पौधे बिना वजह नहीं पत्ते तोड़ो, तो घर जाकर ज़रूर अपने घर के लोगों को कहेगा कि नहीं तोड़ना चाहिए। और यही नहीं, सिर्फ बच्चों को ही नहीं, समाज में भी जागरूकता लाना जरूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे रैली निकालना, छात्रों को लेकर के गांव में रैली निकालना। अब इसमें तरह पानी बचाओ या फिर पेड़ पौधे, मतलब पेड़ों की कटाई नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी स्वच्छता, साफ सफाई, क्योंकि वो भी एक गंदगी है जो हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी असर करती है। गंदगी के चलते तो 10 बीमारियां होती हैं। तो गलियां, जो भी कूड़े कचरे होते हैं, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना होता है। और हम लोगों को अभी तक याद है, हम जहाँ भी पढ़े हैं वहाँ हम लोग, हमारे टीचर हम लोग को लेके रैली निकालते थे, नारा लगाते हुए। यहाँ तक कि नहीं, हम लोगों ने झाड़ू से साफ भी किए हैं गलियों को, ताकि लोग देखेंगे, जब गांव के लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा नहीं कि टीचर होके, बच्चे होके ये सब कह रहे हैं। तो पूरे नहीं, लेकिन आधे के तो माइंड में कुछ तो ऐसा आएगा कि नहीं ये जरूरी है। उसके बारे में बताएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि देखिए ये ऐसे आपने रखा है ना, तो यहाँ मच्छर पैदा होंगे, ये काटेगा तो बीमारी होगा, ये होगा, इससे मतलब ये बीमारियाँ होती है। सब हम बताएंगे लोगों को, गली गली जा कर के, मोहल्ले मोहल्ले जा कर के, स्वच्छता अभियान के लिए। तो ये सब भी होता है, बहुत हम लोगों ने पहले बहुत किया है, तो ये भी किया जा सकता है। उसके बाद से कहीं कहीं क्या होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक होता है। नुक्कड़ नाटक माने जैसे कोई सामाजिक, जैसे आजकल बहुत चीज़ चले, जैसे बेटी दहेज, तो हम पर्यावरण के प्रति भी एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करके पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि प्रदर्शनी लगता है हमारे स्कूल, अपने भी स्कूल में लगता है, हमारे विद्यालय में लगता है। और चूँकि हम धन्यवाद देना चाहेंगे अरमान सर को कि हमको अभी तक याद है, कोरोना पीरियड से पहले चूँकि हमारे स्कूल में प्रदर्शनी लगी थी और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा थीम वहाँ पर प्रस्तुत किया था। आप सभी को याद होगा कि जैसे पोल्यूशन से पेड़, एक बच्चे को ऐसे पेड़ बना दिया था पौधे लगा करके, और ऐसे उधर से धुआं निकलता हुआ, यानी कि जो धुएं, ये जो औद्योगिकरण है, इसका प्रभाव पेड़ पौधों पर कैसा पड़ रहा है। मैंने प्रदूषण के बारे में उन्होंने जो थीम बनाया था, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सराहनीय लगा, आप सभी को याद होगा। तो ऐसे जो थीम है हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, लोगों को दिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है ना, वहाँ पर पेरेंट्स भी आए थे, सभी लोग आए थे, लोगों ने देखा। तो इस मतलब पर्यावरण जागरूकता के लिए, इसके संरक्षण के लिए जैसे पोस्टर लगा करके, जैसे हमें अभी बोली कि रैली निकाल सकते हैं, तो उस पर पोस्टरों पर लिखा रहेगा, चित्र बना करके, जल बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम इस पर्यावरण जागरूकता के लिए कर सकते हैं। और एक टीचर के रूप में तो हम अपने छात्रों को कक्षा में इसके बारे में जो है शिक्षण देते ही हैं।
लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी इसके बारे में जानकारी देना भी हमारा जो है फर्ज बनता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा जो है सभी के लिए ज़रूरी है। रुक दीजिए थोड़ा। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि कुछ आप सभी को जो भी हमारे पास विचार थे आप सभी तक हम पहुंचाए, और उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं, और आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।